when you come to the house of God? How many you want to say? How many of you want to say amen to the Lord? कितना लोग चाहता है मैं amen प्रभु yes Lord, मैं खुश हो गया जब परमेश्वर का भवन में गया, समझा गया ना? Listen, unless we agree with the word, that word will not become flesh in our life. यदि हम परमेश्वर का वचन, you know why यदि हम परमेश्वर का वचन के साथ हाँ में हाँ नहीं बोला तो वो वचन हमारा जीवन में देदारी नहीं होता और यीशु का रूप हमारा जीवन में नहीं लेता, समझा गया ना? Many times we hear the word, हम सुनता है, हम पढ़ता है, पर उस वचन के साथ हम हाँ में हाँ नहीं बोलता. You understand? We don't say yes, we don't say amen to the word when we hear the word, when we read the word. Because of that, what happened? उसके कारण क्या होता है? वो वचन हमारा जीवन में कामयाब नहीं होता. That वचन does not become fruitful in our life. So important. If the word says, how many of you believe in the word of God? कितना लोग यीशु मसीह में विश्वास करता है? कितना लोग सोचता है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता? How many of you believe that God doesn't say lie? All of you believe है ना? सब विश्वास करता है ना? So God said, I am glad when I went to the house of God. You understand? Are you glad actually? समझा गया ना? Because God said, प्रभु ने बोला मैं खुश हो गया परमेश्वर का भवन में जब गया था. पता है सातान क्या चाहता है? चेहरे को लंबा करके प्रभु के साथ निराश ऐसे बैठे. If you want to receive anything in the house of God, there is joy in the house of God. There is gladness in the house of God. When you are glad, जब हम खुश होता है प्रभु का, क्योंकि मेरे भवन में तो मैं दुखी है. You know we have so many things in our house. You understand? We have so many problems in our house. There's hardly anything where we can be joyful in our own house. हमारा घर में, अपना घर में, हमारे जीवन में समस्या से ऊपर समस्या है. कोई है इधर समस्या जिसके पास है? नहीं है क्या? तो बहुत बढ़िया है, फिर आज का वचन आपके लिए नहीं है. You understand? We have so many problems in our house. We are not joyful many times in our house. But in the house of God, there is no problem. It is His house. उसका घर है. You understand? उसका घर में कोई कमी नहीं है. मैं जब उसका घर में बैठता है, उसका घर में भरपूरी है. Because I sit in the house of God, there's fullness of joy in the house of God. खुदा का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है, इसलिए मैं आनंदित हूँ. You understand? Sit with that. You know, because our God is not against us. हमारा प्रभु हमारा विरुद्ध नहीं है. He is for us. If you know that He is for us, यदि आप जाने वो मेरे लिए, then sit with confidence. Yes, प्रभु मेरे लिए. People may not be for me. लोग शायद मेरे लिए नहीं होगा, but He is for me. वो मेरे लिए. Hallelujah. I like some noise in this house. Hallelujah. If He is for us, why would I be sorrowful? यदि वो मेरे लिए तो मैं किस बात में चिंता करूं? Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को स्तुति करें. And the house of God, there is joy because there is praise. Where there is praise, there is faith. जहाँ विश्वास है उधर स्तुति होता है, समझा गया ना? जहाँ विश्वास है उधर आनंद होता है. जहाँ विश्वास है उधर प्रभु का स्तुति होता है. जहाँ स्तुति है उधर विश्वास बढ़ता है, समझा गया ना? समझा गया ना? There is joy in the house of God. प्रभु का भवन में आनंद है. आइए हम देख ले. Let's turn to the word of God. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40 verse 1. Isaiah नबी का किताब 40 का बुलंदरा तक कमागती है. Somebody read it please. साडा परमेश्वर कहता है. दिलासा. क्या लिखा हुआ? What does it say? Isaiah chapter 40 verse 1. तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है. सारा परमेश्वर ये कहता है. बोलो सारा परमेश्वर. Say my God says this. My God says this. सारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कहता है. My God says this. What does He says? What does He says? क्या कहता है? लोगों को दिलासा दो. Comfort my people. मैं ओ रांदे अरते रांदे रखो. मेरा परमेश्वर, सारा परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को दिलासा दे. My God says, speak a word of comfort over my people. Are you with me? समझा गया? Speak a word of comfort over my people. सारा परमेश्वर बोलो एक दूसरे को. बोला सारा परमेश्वर बोलता है. सारा परमेश्वर ये बोलता है. एक दूसरे के ऊपर दिलासा का लफ्ज बोलो. एक जैसे speak over comfort. एक दूसरे को speak to one another word of comfort. If you see Isaiah chapter 39, the last verse it says,
6 verse Isaiah chapter 39 verse 6. गिफ्ट मेरा पानी देना प्लीज. ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ So the Bible says, ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. listen, खुदा का वचन 39, Isaiah 39 does not end with a good note. Isaiah 39 का आखिरी वचन अच्छा बातों के साथ बंद नहीं हो रहे. समझा गया ना? क्या लिखा हुआ? What does it says? King Hezekiah was a great king. King Hezekiah ने अपना सामने, he was a wonderful king. वो महाराजा था, खुदा से डरने वाला. He was a man who feared God. He was a man who walked with God. वो एक ऐसे राजा था जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे. पर आखिरी दिनों में उसने कुछ बेवकूफी किया. बोलो बेवकूफी किया. He did something foolishness. Because of that, the judgment of God came upon his family. उसका कारण उसका परिवार में खुदा का न्याय आ गया. लिखा हुआ ना? So what was the word it says? What does it say? Isaiah 39 6 में क्या लिखा हुआ? 39 का 6 में क्या लिखा हुआ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. Then 7. ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ. ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣਨਗੇ. What was the word came there? क्या वचन आया था? हेzekiah क्योंकि because of this foolishness, क्योंकि उसने कुछ बेवकूफी किया. He did great things, but at the end of his life उसने कुछ बेवकूफी किया. He did something foolishness. Because of that, the word of God, judgment of God came upon him. उस खुदा का न्याय उसका परिवार के ऊपर आया. क्या खुदा ने बोला था? आने वाला दिनों में बाबिलोन का राजा तुझे और तेरा सारा लोगों को, तेरा सारा खजाने को बाबिलोन में लेके जाएगा. तेरे पत्नी और तेरे लोग बाबिलोन राजा का क्या बोलता है? बाबिलोन राजा का क्या बनेगा? गुलाम बनेगा. What did the word came? The word came. Days are coming. The king of Babylon is coming. He is on the way. He is going to take all your people and he is going to take everything you have, and your family is going to be slaves. Are you with me? He had seen great empire Assyria fall before. ये राजा ने अपने सामने बड़ा असीरिया का राज्य गिर के देखा है. पर उसके बाद जब एक समस्या, बड़ा समस्या खत्म हो गया, खुदा का वचन उसके लिए आया. एक समस्या तो खत्म हो गया, तूने सामना कर लिया. अभी तेरा जीवन में ऐसे समस्या आ रहे तू सामना नहीं कर सकेगा. You know, the Lord said, you are faced to one big enemy. You have seen him falling, but the days are coming. You are going to face a greater enemy, and in that war you are going to be defeated. जब ये वचन राजा के पास आया था, राजा is funny. You know what does it say? आखिरी words, what does it say? The last words, what does he say? क्या बोलता है आखिरी वचन में? अपने टब्बर विचों कुछ आदमी बाबिल दे राजा दे महल विच सेवक बनणगे. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? राजा हिजकिय्याह समझ गया. राजा ऐसे क्या समझ गया? You know, when the word came, it was said, nothing will happen to you, but your family is going to be slaves. Your family, you are going to lose everything. Your family is going to lose everything. तेरा खानदान सब कुछ खोएगा. तेरा समय में शायद कुछ नहीं होगा. पर वचन में क्या लिखा हुआ? हेzekiah खुश हो गया. एटलीस्ट मेरा समय में कुछ नहीं हो रहे. He was happy that nothing is happening. That was the time when they were facing, एक शत्रु का सामना करने का समय था. इस्राएल को खुदा शत्रु ने लेके गया कैदी बना के. समझा गया ना? खुदा का राज्य दो हो गया था. खुदा का राज्य इस्राएल दो हो गया था. एक सदर्न, एक नॉर्थ इंडिया हो गया था, एक नॉर्थर्न इस्राएल हो गया था, एक सदर्न इस्राएल हो गया था. समझा गया ना? हेzekiah के सामने उसने देखा था जो नॉर्थर्न, उनको शत्रु कैसे असीरिया का लोग, बाबिलोन के लोग ऐसे लेके गए. You know, he had seen before his eyes how the northern kingdom was taken as slave. अभी उसके सामने, you know, then God said, you are also going to go as slaves. तू भी गुलाम बन के जाना है. You know, there was fear in the heart of the people. There was fear. What is going to happen? You know, we have seen how one king of Assyria oppressed us. कहीं हमने देखा कैसे अशूर का राजा हमको धमकी देके हमारा सब कुछ नाश कर
चाहिए जो उससे बड़ा है, उससे महान है. You know, there was fear in the heart of the people because they had seen how king of Assyria oppressed them, how they were able to win over them because of the Lord. Now Babylon is coming, a greater enemy. Are you with me? That was the time God said. उसी समय खुदा ने बोला, जब सब डर में बैठा हुआ था, हमारा भविष्य हमको पता नहीं क्या होने वाला है, उस समय प्रभु ने बोला, comfort my people. जब सबका दिल में डर होके बैठा हुआ था, उस समय खुदा का वचन खुदा का लोगों के लिए आया. मेरे लोगों के ऊपर मैं दिलासा का वचन बोलता, मैं सारा लोगों के ऊपर दिलासा का वचन बोलता. Today the Lord wants to speak word of comfort over you. आज प्रभु आपके ऊपर, I don't know what you are going through, मेरे को नहीं पता कौन सा बातों से गुजर रहे, but the Lord is saying, in the place of your fear, I speak word of comfort over you. मैं जहाँ तेरा जीवन में डर, जहाँ तेरा जीवन में आने वाला दिनों में क्या होने वाला है, जब उस बातों को नहीं पता है, खुदा आपको बोलना चाहता, आने वाला दिनों में तेरे जीवन में मैं दिलासा का वचन को बोलता हूँ. हालेलुया. How many of you excited? कुछ नहीं है क्या? You know, the Lord wants to speak word of comfort. It doesn't matter whatever the situation. ये नहीं कोई कुछ भी होने दो. You know, when we see this word, ये वचन आइशिया का 36 से कंटिन्यूएशन है, समझा गया ना? Because it's talking about the king Hezekiah. ये हेzekiah राजा के बारे में बोलता है. हेzekiah राजा को प्रभु का वचन आया था, खुदा का लोगों को जो कैदी में है, जो those children of Israel who were slaves in Babylon, slaves in Assyria, जो खुदा इस्राएल का लोग जो बाबिलोन में अशूर देश में कैदी बन के बैठा हुआ है, और यहूदा में जो डर के मार के बैठा हुआ, उनके लिए प्रभु का वचन आ गया. तेरे भविष्य में मैं दिलासा का वचन को बोलना चाहता. I want to speak word of comfort over you. Your warfare is ended. Your problems are ended. Your warfare is ended. तेरा जो युद्ध खत्म हो गया वो. हालेलुया. प्रभु बोलना चाहता, तेरा युद्ध अंत हो चुका है. हालेलुया. King Hezekiah was a great king. कितना लोग हेzekiah राजा के बारे में सुना हुआ है? You know, last Sunday I was able to share a little bit. मैंने थोड़ा बहुत वचन बांट सका last Sunday को. King Hezekiah was a great king. हेzekiah राजा बहुत महान राजा था, समझा गया ना? If you read the book of Kings, First Kings and Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, यदि हम पहला राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास पढ़ा तो एक बात हम देखता है. One thing we see, any king who followed the Lord prospered. जो भी राजा प्रभु का मार्ग में चला था, वो तरक्की पाया. जहां भी गया था, उनका राज्य तरक्की पाया. Whoever followed the Lord always see to it that they prospered wherever they went. जो भी प्रभु का वचन के अनुसार चलता है, प्रभु के पीछे उसके आज्ञा में चलता है, वो अपना जीवन में तरक्की पाएगा. हालेलुया. आमेन बोलना नहीं आता आप लोगों को? आमेन और हालेलुया बोलना नहीं आता? मुंह बंद है क्या? पता है क्यों आमेन कम बोलता है? क्यों हम आमेन बोलता है? You know, amen. You know what? Why do we say amen? Amen means yes Lord. वो मेरे जीवन में ऐसे ही हो जाए. When you say amen, जब आप amen बोलता है, when you say amen, we are saying yes Lord, that is going to happen as you said. जैसे आपने बोला, वो ऐसे मेरे जीवन में होने वाला है. इसलिए मुख बंद करके रहा तो मुख बंद करके. That's why the Lord said, open your mouth wide, I will fill it. तू अपना मुख को खोले ताकि मैं, जितना खोलेगा उतना प्रभु, समझ गया ना? मुख प्रभु का राज्य में मुख बंद करने का है नहीं. शैतान का राज्य मायूसी ऐसे होता है, समझा गया ना? मायूसी ऐसे होता है और बंद करेगा, समझा गया ना? You know, in the kingdom of God, there's you don't. Bible says, open your mouth wide, shout joy unto the Lord. समझा ना? प्रभु के लिए जय जयकार चिल्ला के स्तुति करें. Learn to open your mouth. अपना मुंह को खोलना सीखे ताकि
ताकि प्रभु बढ़ेगा। समझा? एक बात मैं बोलूं, जो लोग मुंह को नहीं खोलता उनके सामने खड़ा है तो मुक्त का स्मेल आ जाएगा। You know those who do not open their mouth and make noise unto the Lord, you can smell the death from their life. You can hear the sound of death. You test and see, परख कर देख लो। जो आवाज नहीं बनाता प्रभु के लिए, जो स्तुति नहीं करता मुंह के लिए, उनके जीवन से, उनका घर से मौत का आवाज निकलेगा। यदि उधर गया तो आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव होता है। I say I'm very sensitive. Oh, I just feel like running away from that. There is no life flowing. Life flow out of, because life is here. जीवन इधर ही है. You understand? जीवन इधर ही है. समझा गया ना? When you open your mouth, life will flow out of your belly. तेरा पेट से जीवन का दरिया निकलेगा. मुंह खोलना सीख लो, ताकि आती आंदे, ताकि प्रभु भर सकता है। तबाती रंदो रोंदो रोखो रा। मेरे को ना गुस्सा आता है जब ऐसे विश्वासियों को देखता है जिसमें जान नहीं है। You understand? You know, I get very upset when I see believers who are supposed to be so-called believers who has no life. I get burdened actually, because I bring revival wherever I go, because I'm hungry for God. मेरे को बेदारी का बहुत अच्छा है, जहाँ भी मैं जाता उधर बेदारी लेके आना चाहता है। That's why I like people to cooperate with me, because I have a call to bring revival. मेरे जीवन में ऐसे बुलावा है, बेदारी लेके गवर्न नहीं कर रही है, वातावरण बदलता है। You know why? Because I open my mouth wide. पता है क्यों वातावरण बदलता है? Atmosphere change, because मेरा मुंह हर समय खुला होता है, या निवासा में या ऐसे अलग बातों से। समझा गया ना? That is why wherever I go, atmosphere change. जहाँ भी हम जाता है वातावरण बदलता है, because मेरे मुझे या निवासा बोलते रहता है, या संधि आरंदोरो कुमगरिये और आरियाम दिहरिये। I allow life to flow. मैं ना जीवन को, समझा गया? जहाँ पे समझा रहे हालेलुया, शाउट चिल्ला के हालेलुया बोले। You know why when I go to a place, situation, पता है क्यों मैं जहाँ मैं जाता वातावरण बदलता है? क्योंकि मेरा मुंह हर समय खुला होता है। ते अंदर तरक्कम करती अंदरे, because I am flowing. मुझे मानता है तो God want to the river to flow. You know, if our mouth is closed, God want the river to flow, but no life. Life is here. Learn to pray in tongues always. Learn to praise the Lord always. स्तुति करना सीखो, ताकि आप जीवन को ले। Life is in me. I carry life. मेरे में जीवन है, मैं जीवन को लेते घूमता है। जहाँ भी मैं जाता है मैं जीवन लेके आता है। समझा गया ना? मेरे अंदर बोलो एक दूसरे को, तेरे अंदर जीवन है। You know, we carry life. लाइफ हमारे अंदर है, जीवन मेरे अंदर है। समझा गया ना? प्रभु ने बोला तेरे अंदर जीवन का दरिया है, जीवन का कटोरा है। क्या? Do you have जीवन कटोरा? Do you have a small bowl of life inside you? No, you have rivers of life. जीवन का दरिया है, कटोरा है। क्या? किसके अंदर कटोरा है? जीवन का कटोरा। Who has जीवन का bowl, life bowl? No. What do you have? What you have, you will show it. जो आपके पास है वो दिखाई देगा। जिसके पास कटोरा है, कटोरा दिखाई देगा, उतना ही निकलेगा। कटोरा खत्म हो जाता है ना, but दरिया never finish. दरिया कभी river never get dry. I have rivers of life. That means life keeps on coming. So I want to see some life actually, because we didn't call our people who was filled with life in this, because we wanted you to come. क्योंकि आप लोग आना चाहते, इसलिए हम अपना जो लोग है ना आवाज बनाते उनको नहीं बुलाया आज। समझा ना? आप आवाज बना दे। I like to, you have life. Say one day I have life. आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर जीवन है। प्रभु ने बोला, the Lord said है ना, the Lord said है ना, if you drink what I give, यदि तू पिया तो जो मैं देगा तेरे अंदर से क्या निकलेगा? What comes out of you? क्या निकलेगा? Rivers of. That means if you are not making noise, that means you have not drank from the Lord. आपने यदि आवाज नहीं बना रहे, जीवन नहीं निकल रहे, इसका मतलब आपने अभी तक प्रभु से पिया नहीं। कोई बात नहीं, आज नया जन्म का प्रार्थना करवाएगा। Today we will ask you to. You understand what I am saying? You know, life flow. Because when there is life, death cannot come near you. जब जीवन आपके अंदर से निकलता है, मौत आपके सामने नहीं आ सकता। Sickness cannot come. You understand? It gives energy into your body. वो हमारा शरीर में ताकत को देता है, सामर्थ्य। That's what the Lord said. There is power in you. तेरे अंदर सामर्थ्य। प्रभु ने बोला सामर्थ्य।
बट इधर ऐसे लोग बैठा हुआ है, सामर्थ्य लोगों को नहीं दिखाई। I can't see people with power. The Lord said when you receive the Holy Spirit, you have power. Yes. Amen. The Lord said, प्रभु ने बोला ना, नहीं बोला, आपका बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। नया इधर से 200 रुपये देना अपने पड़ेगा, हमारा बाइबल में लिखा हुआ है। You understand? The Bible we have written, you have power. समझा गया ना? You have power. आपके अंदर सामर्थ्य है, सामर्थ्य दे छुपा है तो सामर्थ्य का कोई फायदा नहीं है। If the power is hidden, there is no point. When your power it is seen, it's experienced. You understand? Hallelujah. इसको अनुभव कर सकता है। बोलो I have power, मेरे पास सामर्थ्य है। बोलो मेरे पास सामर्थ्य है। Hallelujah. तो वक्त ये लंबो रोक मगर ये। So the Bible says, let's turn to 2 Kings chapter 18. Hallelujah. Let's 2 Kings chapter 18. Hallelujah. How many of you excited now at least? कितना लोग उठे थे? Hallelujah. Yes. Oh, रंदे रेखे मगरी अंधे रखो तो को हाला करती है कि you know why I become like this? पता है आपको मैं कैसे ऐसे बन गया? जब मैंने प्रभु को पाया था, मैं ऐसे पहले भी मैं बहुत आवाज बनाते थे, ऐसे चर्च में जाते थे जब हम बहुत आवाज बनाते थे। I went to a church where there's so much noise. They always forget us. Oh, everywhere the noise. I also wanted noise. I told the Lord, I want noise also. मैंने प्रभु को बोला मेरे को चाहिए, मेरे को भी चाहिए, because I saw in their life there was something different. मैंने उनका जीवन में कुछ फर्क देखा। समझा गया ना? जिस चर्च में मैं गया था प्रभु में आने से पहले, वो तो मरा हुआ था। चर्च में गया ऐसा लगता तो वो जो कोई लाश को दफन करने के लिए गया, जब वापस आता है। समझा गया ना? When they went to the church, they came back like they went for a funeral. The church where जो चर्च में मैं गया था ऐसा लगता है वो दफन करने के लिए गया। समझा गया ना? But when I went to a believers church after I became a Lord, मैंने जब प्रभु में आया, जिस चर्च में मैं गया, they were very noisy. But then I understood one thing. अच्छा, once you come to the Lord, you have to become noisy. मेरे को फिर पता चल गया, अच्छा प्रभु का ये लोग, इसका मतलब एक बार जो पहले में ऐसे था, अभी पहले में दुनिया में आवाज बनाया, अभी मैं इधर आवाज बना। Before I made noise in the world, now I make noise in the church. अभी मैं परमेश्वर का भवन में आवाज बनाता है। Because in heaven there's so much noise है ना? आपने क्या सोचा स्वर्ग में आवाज नहीं है क्या? आप फिर कान में जब मर जाएगा ना, किसी को बोल देना कान में वो लगा दे। समझा गया ना? When you die, वो ईयर क्या बोलता ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में there is going to be so much noise. I'm telling them, you better tell the people to put an ear pad. Ear, as in heaven is going to be noisy. You will have problems. समस्या हो जाएगा आपको। इसलिए अभी से, you understand? Start making noise. You will see your life changing. आप अपना जीवन बदल के दें। जीवन में पता है हमारा घर में मौन रहता है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है। I get very upset when I go to the house. Everybody is walking like this. No noise. You know what I will do? I will put the music so loud. I feel like I'm taking revenge. मेरे को ऐसा लगता है मैं बदला लेती है। इधर इतना जैसे लाश का भवन का ऐसे लगता है। There is no sound in this house. It's like everybody is walking. Dead bodies are walking. I get very upset. मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं अपना वो स्पीकर लगाएगा, इतना ऊंचा म्यूजिक लगाएगा, ऐसे सबके साथ लड़ने का ऐसा लगता है। I feel like fighting with them. I hate when there is no life. मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि where there is no life, Satan sits. जहाँ जीवन नहीं है, उधर मौत का आत्मा बैठा है। You understand? Okay, let's turn to 2 Kings chapter 18. Oh, sometimes I forget the time. Okay, what does it say? King Hezekiah was verse 3. Somebody read verse 3. राजा हिजकिय्याह ने अपने पुरखा दाऊद सबका He did everything what is right. उसने सब कुछ भलाई किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है? Verse 2 Kings chapter 18 verse 5. राजा हिजकिय्याह प्रभु इस्राएल ने परमेश्वर पे विश्वास करता था। What does it say? राजा हिजकिय्याह ने he trusted in the Lord. Even in every situation, he trusted the Lord. उसने परमेश्वर में विश्वास किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 7 में 6. वह
यहोवा से लिपटा रहा वो यहोवा से लिपटा रही, clung to the Lord. ये सुन रही है, रूबी इधर ही सुन ले, बच्चा खेलने दो, कोई बात अपना काम करने दो, समझ गया ना? वो अपना बच्चा अपना काम करने दो, आप जिस काम के लिए इधर आए वही कर ले, ठीक है? समझा गया ना? Listen to the word. ये the Bible says, हेसेकिया क्या लिखा हुआ? लिपटा हुआ था परमेश्वर के साथ. हेसेकिया clung to the Lord, it says. Then what does it? उसके बाद क्या लिखा हुआ? और उसके पीछे चलना ना छोड़ा. प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा. He followed the Lord. You understand? Then what does it say? जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को Whatever the Lord said, he followed. जो भी प्रभु ने बोला था, आज्ञा का अनुसार वो चला था. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसीलिए यहोवा उसके संग रहा. हाँ. जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल. Because of that, the Lord was with him. The Lord is with those who are with him. जो प्रभु के साथ है, उनके साथ प्रभु भी है. समझा गया ना? आपको समझ नहीं आया? जो प्रभु के साथ है, जो प्रभु के साथ चलता है, उनके साथ प्रभु भी चलता है. If you are with him, he will be with you. समझा गया ना? Then what happened? Wherever he went, God prospered. जहाँ भी हो गया था, खुदा ने उसको तरक्की दी, जीत दी. जहाँ भी हो गया था, जयवंत से बढ़कर जयवंत पाया. When we are walking with God, wherever we go, He will cause our prosperity. वो हमारा तरक्की के लिए रास्ता बनाएगा. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? What does it say? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? What does it say? 7:7 बाबा. इसीलिए यहोवा उसके संग रहा. हाँ. और जहाँ कहीं वह जाता था हाँ. वहाँ उसके काम सफल होता था. हाँ. उसने अशूर के राजा से बलवा करके What does it say? अधिकता छोड़ी. He resisted the king of Assyria. उसने अशूर राजा का विद्रोह किया. The one who stand with God will never fear any man. जो प्रभु के साथ खड़ा होता है, वो कोई मनुष्य के सामने अपना घुटना को हालेलुया. अशूर राजा, Bible says the king of Assyria is the most wicked king. अश्शूरिया का राजा, पिछले संडे को मैंने बोला था, सबसे क्रूर. He was the most cruel king on the earth. वो लोगों को डरा के और लाठी के साथ राज्य चलाते थे. He ruled his empire with violence and cruelty. He used to find out, he invent weapons. वो ऐसे ऐसा हत्या को खोज में था. You know, invent means how do you, what do you say? Invent, क्या बोलते हैं? Invent means खोज नहीं है. Not खोज. Invent means he discovered. तैयार बनाना, आविष्कार करना. हाँ, उसने उत्पन्न कर लिया. ऐसे ऐसे अलग अलग हथियार. You know, he invented weapons, the worst weapons. You understand? He was the worst king. वो पूरा राज्य को अपने कब्जे में किया था. He ruled, he controlled, he took possession of all other countries. और हर एक देश को अपना कब्जे में रखा था. बहुत वो लोगों का चमड़ी को ऐसे, जो लोग उनका सामना करते थे, ऐसे उसका चमड़ी को निकाल के कारों के ऊपर लटकाते थे. If those who resist him, he used to take out their skin, he used to hang it in their house, sending the message across. If anyone resists, this is what is going to happen. ऐसे वो चमड़ी को उधार के कारों के ऊपर लटकाते थे. ये संदेशा बोलकर जो मेरा सामना करता है, उनका हाल यही होगा. पूरा देश में, पूरा देश का पेड़ में trees, he used to hang the skin of the people on the trees. पूरा देश का पेड़ों में चमड़ियां अच्छे लटका रहते थे. Skins used to hang in the trees because no one could stand before him. कोई भी उसका सामना नहीं कर सकते थे. पर अशूर, what does it say? King Hezekiah ने क्या किया? उसका सामना किया. He did not bow before King Assyria. King Hezekiah राजा ने, ये अशूर का इतना बड़ा उसका सेना बहुत महान था. His army was big. He had ऐसे things, जैसे वो उसके पास हथियार होते थे, कोई कभी सोचा भी नहीं. He had weapons which no one even would have thought. The worst, cruelest weapon in his life. I mean, in his kingdom. He was very bad. But the Bible says,
वचन में क्या लिखा हुआ? ऐसे क्या राजा ने क्या किया? उसके सामना किया, उसके सामने अपना सिर को नहीं झुका। उसके बाद ऐसे क्या राजा, वन थिंग आई विल टेल यू, व्हेन यू आर विद द लॉर्ड, जब हम प्रभु के साथ चलता है, शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाएगा। When you are with the Lord, you will not fear your enemy. Hallelujah. You will never become, when you fear the Lord, जब हम प्रभु के साथ साथ चलता है, तेरे को शत्रु से डरने का जरूरत, कितना भी क्रूअल होने दो, कितना भी क्रूर होने दो, you know, even if it's the worst, we don't need to fear. When we fear the Lord, जब हम खुदा का डर मानता है, you understand what I said? But the Bible says, let's come to the point. उसके बाद क्या लिखा? Then what does it say? 8 में what does it say? Philistine was the oldest. Philistine was the worst enemy of another enemy of Israel. खुदा का लोगों का दूसरा शत्रु था फिलिस्तीन। बाइबल में क्या लिखा? ऐसा क्या राजा ने फिलिस्तीन के ऊपर भी फतेह पाया। And you know, King Hezekiah was a very God-fearing man. वो खुदा से इतना डरते थे, खुदा से इतना प्यार करते थे। पहले साल नहीं, पहला ही साल उसने क्या किया? परमेश्वर का मंदिर, जो खुदा का भवन जो बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि उससे पहले जो राजा था सब बुरा था। You know, the first year of his reign, the first year of his rule, you know what did King Hezekiah do? He opened the house of God, because the previous king were so evil. They had closed the house of God. There was no worship happening. कोई आराधना नहीं था प्रभु का लोगों के बीच में। प्रभु का भवन बंद था, प्रभु का भवन से आराधना का आवाज नहीं था। जब हेzekiah राजा का पहले साल, the first thing he did is he opened the house of God, started the worship, revived the priest. उसने क्या किया? खुदा का भवन को खोल के खुदा का भवन में आराधना लेके आया, और याजकों के बीच में, लेवियों के बीच में बेदारी को लेके आया। He brought revival in the country. उसने देश में बेदारी लेके आया। He was a man who walked with God. खुदा के साथ साथ चलने वाला। But one thing I want to tell you, somebody read 2 Kings chapter 18 verse 13. दूसरा राजा का 18 का 13 में क्या लिखा हुआ? What is it? Read sir. राजा हिजकिय्याह ने राजकाल दे 14वें साल ਵਿੱਚ अशूर दे राजा, Everything was going on well with the king. सब कुछ राजा का जीवन में अच्छा चल रहा था, समझा गया ना? But what happened on the 14th year? 14 साल उसने जब राज किया, कौन आ गया उसके सामने? अशूर का राजा इसके सामने आ गया। After the 14th year, what happened? The king of Assyria came again. अशूर का राजा आ गया। You understand? Before he came, वो ये यहूदा देश में आने से पहले, यरूशलेम में आने से पहले, you know, अशूर का राजा इस्राएल को खत्म किया था, बहुत देशों को कब्जा किया था। अशूर का राजा के सामने एक हथियार होता है। You know, this king of Assyria had a weapon. Last time also I shared it. He used to breed a special type of eagle. ये ऐसे उकाबों को वो देखभाल करते थे, पता नहीं कैसे जन्म देते थे। ये नॉर्मल उकाब नहीं था, जो उकाब है उसके समान नहीं था। नॉर्मल उकाब शायद 2 फीट होगा, वो अपना खुला तो 1 फीट ऐसे होगा, इतना ही होगा। पर this, you know, he bred a particular type of eagle which was 10 to 8 feet long. ये ऐसे 8 फीट से लेके 10 फीट तक लंबा था, और उसके वो इतना बड़ा था। It was a very huge eagle, and you know it could fly 60 miles per hour, और 60 मील 1 घंटे में वो क्या बोलता है, उठ सकते थे। और ये राजा क्या करते थे? You know what the king used to do? Last week also I said he used to tie leather string. वो क्या करते थे? ये उकाब के पैर में he used to tie leather string in the legs of eagle. ये उकाब के पैर में क्या बांधते थे? वो रस्सी बांधते थे, चमड़े का रस्सी बांध के उसमें बड़ा मेटालिक बॉल बांधते थे, वो लोहे का बॉल उसमें बांधते थे, वो बड़ा you know he used to tie metallic balls, huge metallic balls in the leg of this eagle, and then क्या करते थे? ये he used to have 7,000
7,000 of this eagle, 7,000 ईगल था. ये क्या करता है? जिस देश के साथ इसने लड़ना है, the country which he want to conquer, what he will do is he will send this eagles with this metallic balls, with the soldiers hanging in their leg. जो भोजी सेना का लोग, जो क्या बोलता है, सोल्जर को क्या बोलता है हिंदी में, सैनिक लोगों को वो पैर में बांध देते थे, ऐसे बांध देते थे, और ये उकाब को ऐसे उठाते थे जो जिस देश को इसने कब्जा करना. You know, one of his weapon was this eagles. These eagles were very cruel. These eagles were tied with that metallic balls, with the soldiers hanging in that. He used to send thousands of this eagle to the country which he wanted to conquer. जिस देश के साथ लड़ना था, उस देश में ये उकाब को ये भेजेगा. ये उकाब क्या करेगा? जहाँ भी जाएगा, ये मेटालिक बॉल लोगों का सिर पे ऐसे होके हजारों लोग मर गया था. समझ गया ना? समझ नहीं आया? You understand? You know, when this he used to let go of this eagles, the country which he want to fight and win. He want to, you know, take control of. You know, and this, when the eagle goes with the metallic balls hanging, with the soldiers hanging, it used to hit on the head of the people, and thousands of people used to die. हजारों लोग मर जाते थे. समझा गया ना? You know what is happening here? King Hezekiah resisted the king of Assyria. अशूर का राजा का सामना किया था अभी तक, पर 14 साल में क्या हो गया? What does it say? What does it say? Verse 13 and 14 क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? पढ़ो गौर हो गया क्या? हाँ, when King Assyria का राजा जब आया था, असीरिया का राजा जब आया था सामना करने के लिए, किंग हेzekiah ने जाके क्या बोला? प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपके साथ गलती कर लिया. समझ गया ना? मैं गलती कर लिया, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ दुश्मनी नहीं करना. You know, King Hezekiah went and pleaded to the king of Assyria, saying, please forgive me, I have done wrong against you, please be with me and help me, don't be against me, I am with you, I am your son, मैं तेरा बेटा है. वो अश्शूर का राजा ने क्या किया? और उसके बाद ये किंग हेzekiah ने क्या किया? प्रभु का भवन में जितना सोना चांदी था, you know what King Hezekiah did is, how much of silver and gold was in the house of God, he took it and gave it to the king of Assyria. उसने क्या किया? अश्शूरिया राजा को सारा सोना चांदी प्रभु का भवन में था, वो ही उसने उसको दे दिया और उसको खुश करने का कोशिश किया. समझ गया मेरा बात? जो खुदा के साथ चलने वाला, विश्वास में इतना मजबूत राजा जब ऐसा शत्रु का सामना किया था, when he faced with the king Assyria, instead of trusting in the Lord to defend him, he started trusting in the silver and gold. He started trusting in what in the money and the strength he had to buy the king. जब शत्रु का सामना करने का वक्त आ गया, ये अशूर राजा प्रभु में विश्वास करने का अलावा जो सोना और चांदी देके वो राजा को खरीदने के लिए कोशिश किया. समझा गया ना? हेzekiah राजा खुदा के साथ चलने वाला, he walked with God. Bible says wherever he went, God was with him. जहां भी था प्रभु भी उसके साथ था. कभी कोई हमारा जीवन में भी कोई हालत में, I don't know whether you can understand, कभी हम भी when we face with problem, जब हम समस्या का सामना करना पड़ता है, कभी हम टूट जाता है, विश्वास डगमग जाता है. This Hezekiah राजा, he was a man of faith, but when he heard about what this king has done, जब उसने सुना ये राजा ने कितना कठिन दूसरों को सजा दिया है, when he heard about the cruelty of this king, his faith started shaking. उसका विश्वास डगमगना शुरू किया. जब विश्वास नीचे ऊपर होना शुरू किया, उसने क्या किया? समझौता के लिए तैयार हो गया. He was ready for compromise.
exactly how King Ahaz, उसका पिता ने जो किया था, उसका पिता सबसे बुरा राजा था. His father was a wicked king. He did exactly the same thing in chapter 16 verse 8. उसने वही किया था जब अशूर का राजा आया था. ये हिजकिय्याह का पिता भी क्या किया था, प्रभु का भवन से सोना चांदी निकाल कर उसको राजा को खरीदने का कोशिश किया. Now at the time of crisis, जब अभी हिजकिय्याह को भी सामना करना पड़ा, वो भी क्या कर रही है, वो जो उसका बाप ने what he is doing, what his father had done it. You know, that's why the Bible says we cannot boast of anything in our life. हम कुछ भी बातों के ऊपर घमंड नहीं कर सकते. He was a man of faith. We all go through this phase. हम सब ऐसे बातों से गुजरता है. जब ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है, ये क्यों आज हम सीख रहे हैं? In our life also we will face many problems. हम अपना जीवन में भी ऐसे बहुत बातों का सामना करना पड़ेगा. उस समय हम क्या करेगा? You understand? हिजकिय्याह प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु उसके साथ चलते थे, जहाँ भी गया था तरक्की दिया था. But when he faced with the king of Assyria, जब उसने अशूर राजा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ. So it's so important what we hear. इसलिए बहुत चौकस रखना पड़ता है हम क्या सुन रहे हैं. समझ आ गया ना? क्या जो हम सुनता है वो हमारा दिमाग में आता है, वो हमारा दिल में आता है. What we hear, it will go to our mind. From our mind it goes to our heart. When it goes to our heart, it start controlling us. जब वो हमारा दिल में जाता है, वो हमारा जीवन को कंट्रोल करना शुरू करता है. समझ गया क्या? समझ आ गया क्या? We all go through this problem. हम सब ऐसे बातों से गुजरता है. जब ऐसे हम बोलता है नहीं 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 मैं प्रभु के साथ चलता है, मेरे अंदर बहुत विश्वास है, I am this, मैं ये है वो है. But when you meet with King of Assyria, जब तू अशूर का राजा का समस्या का सामना करेगा, हम अपना हमारा व्यवहार कैसे होगा? How you going to react? You understand? But what happened? वचन में क्या लिखा हुआ? हिजकिय्याह ऐसे करने का द्वारा वो खुदा ने उसको बचाया नहीं. हमारा बचाने वाला सिर्फ प्रभु है. अशूर का राजा नहीं, बाबिलोन का राजा नहीं, कोई भी छोटा बड़ा समस्या जब हमारा जीवन में आता है, उसका सामना करने का एक ही तरीका है, प्रभु के पास भागे जाना. You know, whether we are big or small or great or short or long or whatever problem we have, our Savior is Jesus alone is our Savior. वही हमारा बचाने वाला. उसके बाद वचन में क्या लिखा हुआ? You know, King Hezekiah thought I can buy the king's favor. मैं राजा का कृपा को सोना और चांदी दे के खरीद सकता है. But what happened was, King of Hezekiah become poor. God's house become poor. खुदा का भवन में गरीबी आ गया. हेzekiah राजा का देश में गरीबी आ गया. और अशूर का राजा और दलेरी पाया. King of Assyria become bold. You understand? When we adopt other means other than the means of God, the enemy becomes stronger and stronger against us. समझ गया ना? जब हम खुदा का वचन से छोड़ के ऐसे बातों को अपनाता है, हमारा समस्या से निकलने के लिए हम अपना शत्रु को कमजोर करने का अलावा हम अपना शत्रु को क्या कर रही है? सामर्थी बना रही है और दलेरी दे रही है. When we face with problem, it's so important how we react. समझ आ गया ना? How long it has been? How long it has been? 45 minutes. 45 minutes. आज आपके सामने ये छोड़ के मैं, you know, what did you learn today? क्या आपने सीखा? यदि आप प्रभु के साथ चला तो प्रभु भी आपके साथ चलेगा. If you walk with God, He will also walk with you. यदि आप प्रभु के साथ चला तो जहाँ भी आप जाएगा उधर तरक्की आएगा. You know, when you walk with God, wherever you go, you will prosper. You understand? You will resist the strongest enemy. You will have so much boldness when you
you walk with God, जब प्रभु के साथ चलता है, आपके जीवन में इतना दिलेरी होता है, आप कोई भी शत्रु का सामना कर सकता है, because जो प्रभु के साथ है, प्रभु का छाया में रहता है. When we are with God, we are in the shadow of the Almighty. हम परमेश्वर का छाया में रहता है. But sometimes in our life, पर कभी-कभी ऐसे हालत में हम विश्वास में नीचे जाते हैं. समझिए ना? Sometimes in our life, even when we walk with God, the great people of faith shake with their faith. Their faith gets shaken when they face problems which they cannot solve. बहुत बार हम भी अपना जीवन में, इसलिए हम कोई भी बातों में घमंड नहीं करें. आज हम खड़ा तो खुदा का अनुग्रह है. If we are standing today, it is because of His grace. So we cannot boast of anything. कोई भी बात में हम घमंड नहीं करें. कल कैसे होगा, क्या होगा, प्रभु ही जानता है. Only He knows what is going to be tomorrow, how we are going to be tomorrow. When we face with the enemy, however strong it is, never adopt means which is not of the Lord. कितना भी शत्रु मजबूत होने दो, महा समस्या होने दो, हम उस समस्या का सामना करना पड़ता है. कभी भी प्रभु का वचन का पार होके तरीका को अपना जीवन में अपनाना नहीं, उससे बचने के लिए. समझा गया ना? लोग बहुत बार दशांश नहीं देता, ये सोच के पैसा नहीं होता, ये पैसा कहाँ कैसे दे दूँ, पर वो नहीं जानता गरीबी पीछे पीछे आ रही है. When people do not pay tithes, they think, oh, we have to give so much. No, but they don't know that poverty is following that. Whenever we adopt other means, there's always destruction waiting for us. The enemy get bold, the shatru और दिलेरी होता है. समझा गया? समझा गया ना? King Hezekiah was a great man of God. वो परमेश्वर का महान व्यक्ति था, पर कभी वो भी गिर गया था. But next week we'll see how he came back to the Lord. अगले हफ्ते हम देख लेगा, वो उधर नहीं रहा, वो हालत में नहीं रहा, वो दोबारा उठ गया, प्रभु के साथ चल के और शत्रु का सामना करना शुरू किया. That we'll see next week. God bless you. I am correct.